Namaskar to my dear young friends of class 10th, Artificial Intelligence. From this chapter, we are going to start a new unit, that is unit 4, data science. Earlier chapters were common for class 9th and class 10th. So those videos I have already uploaded. If you missed any video, you can watch from I button and the link I will provide you in description as well. So let me start with data science. Myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel Tutorial AICS IP. Before starting this video, if you are coming to my channel first time, watching my video first time, watching my face first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get relevant updates. So here we start. So already we have covered the topic of domains of AI. In class 9th you learn about this domains of AI. So basically there are three domains we are talking about. First one is data, second is computer vision, and third is natural language processing. So here in data science, what is data and how it is helpful for us or how it is changing the technology. So data science plays an important role for making decisions. It helps to take decisions according to data. So data can be processed, then it will generate the result for the company or for the people who are working there. So that is data science. Data science is a big field which dealing with data. So in that we have seen data science generally collect some of the information from the customer or sometimes collect the information from the market and then it analyze the data and produce the result. And after that the user can get the decision properly or can take the decision from that data. So that is the part of data science. So that you know, and here in this video I am going to cover introduction part and then applications of data science. So these two topics I am going to cover in this video. Then we will continue further this playlist. So let me start. Before starting this video, if you are coming to my channel first time, or if you are watching my video on Facebook page, like our page. We are sharing this type of contents frequently. So let me start. So first of all, as we have discussed earlier in class 9th, artificial intelligence is a technology which completely depends on data. So data basically whatever things we are taking from users or asking to customer, that is called data. Suppose if school is there, then school is taking data for student, teachers, staff and other stakeholders. So that is considered as a data. So data basically coming in form of input and we are generating in form of output. So these two types of data will be there, input data, output data, and this data will be processed by using different types of systems. So here it is the data which is fed into the machine which makes it intelligent. And depending upon the type of data we have, AI can be classified into three broad domains. So these domains we have already discussed. So let me go ahead. This game also you have played in class 9. If you have not played yet, so start playing and answer the following questions which is given over here. So आप यहाँ पे उसके आंसर्स लिख सकते हैं, आपने जो भी फिल किया है. यहाँ पे आपको जैसे बताया गया है, the challenge here is to win 20 games against AI before AI wins them against you. तो आपको 20 बार इस AI वाली जो सिस्टम है उसके सामने जीतना है और उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं. तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, ये रॉक पेपर सीजर्स गेम के ऊपर से जो आप क्लास 9 में खेल चुके होंगे. अगर नहीं खेले हैं तो अभी आप इसको खेल सकते हैं और इसके आंसर्स भी दे सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस. तो बेसिकली data science is not a new field. Data science majorly work around analyzing the data, and when it comes to AI, the analysis help in making the machine intelligent enough to perform tasks by itself. There exist various applications of data science in today's world. Some of them are like something. First one is fraud and risk detection. मोस्टली जो प्राइस कंपेयरिंग की जो वेबसाइट्स होती है वो भी डेटा साइंस को यूज करती है. उसमें बहुत सारे वेबसाइट्स आपको इस पीडीएफ में दिए गए हैं एज ए एग्जांपल के तौर पे. लाइक प्राइस ग्रैबर दिया है, उसके बाद बहुत सारे कुछ वेबसाइट दिया है, शॉपिंग जिला. तो ये सब एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो वो भी एक डेटा साइंस का एग्जांपल है. और यहाँ पे फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, तो इसमें भी डेटा साइंस बहुत काम आता है. तो कैसे, तो कुछ क्वेश्चंस वहां पे वेबसाइट पे होते हैं, वो क्वेश्चंस जो डेटा फिलअप होता है उसके आधार पर उसके बाद जनरली डिसाइड किया जाता है कि किसी को लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए.
कोई आदमी जो है वो पर्टिकुलर लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमें इससे पता चलता है। तो इसीलिए फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन में इसका यूज होता है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। द अर्लीस्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस वर इन फाइनेंस। कंपनीज वर फेड अप ऑफ बैड डेब्ट्स एंड लॉसेस एवरी ईयर। तो हर साल कंपनियों को नुकसान होता रहता था बैड डेब्ट की वजह से। बहुत सारे लोग जो आते थे लोन्स लेते थे लेकिन पैसा वापस नहीं करते थे। लोन रीपेमेंट के टाइम पे कहीं ना कहीं बहाने बना करके कंपनी को लॉस में डुबा देते थे। तो यहाँ पे इसीलिए हाउएवर दे हैड अ लॉट ऑफ डेटा which used to get collected during the initial paperwork while sanctioning loans। तो यहाँ पे जब उनको लोन दिया गया है उस टाइम पे उनका बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया हुआ होता है। They decided to bring in data scientists in order to rescue from the losses। तो फिर उन्होंने डेटा साइंटिस्ट का कांटेक्ट किया और फिर इन्हीं डेटा के ऊपर से कैसे इसको रिकवर किया जाए उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब हम डेटा साइंस को बुलाएंगे और इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमें इस टूल से मिलेगा, डेटा साइंस से। ओवर द इयर्स बैंकिंग कंपनीज लर्न टू डिवाइड एंड कॉन्कर डेटा वाया कस्टमर प्रोफाइलिंग, पास्ट एक्सपेंडिचर्स एंड अदर इसेंशियल वेरिएबल्स टू एनालाइज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिस्क एंड डिफॉल्ट। तो रिस्क और डिफॉल्ट कैसे यहाँ पे तय किया जाता है, तो ये मान लीजिए कि कस्टमर का जो डेटा फीड होता है उसके ऊपर से यहाँ पे जैसे लिखा है कि पास्ट एक्सपेंडिचर्स, तो पिछले कितने एक्सपेंडिचर्स कस्टमर के अकाउंट में हुए हैं वो पहले देखा जाता है। उससे पहले कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर का प्रोफाइल भी देखा जाता है कि हर मंथ यहाँ पे कितना डिपॉजिट होता है, कितना अमाउंट विड्रॉ होता है और कितना एक्सपेंडिचर होता है उस पर्टिकुलर अकाउंट में से। तो ये एक सिंपल टर्म हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया है अदर इसेंशियल वेरिएबल्स। उसके अलावा भी और कुछ वेरिएबल्स इनके दिए जाते हैं, देखे जाते हैं, जैसे कि बैंक में जो अकाउंट है उसके बाद उसके अलावा भी और कोई इनकम है क्या जो बैंक में डिपॉजिट नहीं होती है, तो उसके भी सोर्सेस वहां पे पता किए जाते हैं। उसके बाद यहां दिया है मोर ओवर इट ऑल्सो हेल्प देम टू पुश देयर बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर्स परचेजिंग पावर। और उसके बाद जो कस्टमर का परचेजिंग पावर है वो भी तय किया जाता है कि मानो इतने इतने ट्रांजेक्शन मंथली होता है तो कई बार हम लोगों को कॉल आता है, वो बैंक से जनरली नहीं आते, वो मार्केटिंग कंपनी वगैरह होती है वो हमें कॉल करती है कि ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो टेलीकॉलर्स वहां से हमें उसी डेटा से कॉल करके ये सारी चीजें हमें बताता है या तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे दूसरा जो है वो है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। तो ये जो एप्लीकेशन है वो डेटा साइंस में कैसे हेल्प करती है, चलिए देखते हैं। डेटा साइंस एप्लीकेशंस आल्सो एनेबल एन एडवांस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पर्सनलाइजेशन थ्रू रिसर्च इन genetics and genomics. The goal is to understand the impact of the DNA on our health and find individual biological connections between genetics, disease and drug response. कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोग जो है वो कुछ रोग हमें जीनेटिक्स होता है, तो ऐसे रोग को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यहाँ पे ये जीनेटिक्स एंड जीनोमिक्स फील्ड में डेटा साइंस का यूज होता है। तो यहाँ पे डीएनए वगैरह जो है उसको चेक करके डायग्नोसिस किया जाता है और यहाँ पे बायोलॉजिकल कनेक्शन जो होता है जेनेटिक के बीच में, या तो फिर कोई बेसिक्स उसका होता है डिसीज वगैरह, ड्रग रिस्पॉन्स, तो उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है एज अ पैरामीटर। डेटा साइंस टेक्निक अलाउज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा विथ genomic data in disease research, which provides a deeper understanding of genetic issues in reactions to particular drugs and disease. As soon as we acquire reliable person genome data, we will achieve a deeper understanding of the human DNA. तो इसी प्रकार से जैसे जीनोमिक्स डेटा आता है उसके ऊपर से डीएनए को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी मिलती है। द एडवांस जेनेटिक रिस्क प्रेडिक्शन विल बी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मोर इंडिविजुअल केयर। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल केयर रखने के लिए रिस्क प्रेडिक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो फील्ड है वो इंटरनेट सर्च है। आप सब लोग गूगल यूज करते हैं, तो गूगल एक सर्च इंजिन है, वहां पर भी सारे बोट्स काम करते हैं। तो ये जो बोट्स है वो बेसिकली आप पूरे दिन क्या सर्च करते हैं उसका एक रिकॉर्ड ट्रैक किया जाता है और इसके ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसका जो वेब ट्रैवलर होता है या तो बोट होता है वो यही काम करता है और उसी सर्च को पकड़ के आपको रेलिवेंट डेटा आपके गूगल के होम पेज में दिखाएगा। देखिए यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट सर्च इंजिन्स वी थिंक गूगल, राइट? यस, बट there are many other search engines like Yahoo, Bing, Ask, AOL, American Online and so on. एक Bing भी है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, Bing,
तो ये भी होता है सर्च इंजन। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। All these search engines, including Google, make use of data science algorithms to deliver the best result for our search query in the fractions of seconds. Considering the fact that Google process more than 20 petabytes of data every day, had there been no data science, Google wouldn't have been the Google we know today. तो यहाँ पे अगर डेटा साइंस नहीं होता तो गूगल नहीं होता, ऐसा यहाँ इनका कहना है। तो मतलब यह है कि सिंपली आप देखिए कि अगर उसका एल्गोरिदम, उसका जो भी बॉट्स है वो कैसे काम करता है, तो कीवर्ड के ऊपर काम करता है। तो कीवर्ड में क्या होता है, जो भी कीवर्ड वहां पे सर्च किया जाता है, हम जो लिखते हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। सिंपली हम जो भी सर्च करेंगे उसे कीवर्ड कहते हैं। मानो अभी आपने ढूंढा AI क्लास 10, AI नोट्स क्लास 10, तो ये आपका एक कीवर्ड हो गया। तो उस कीवर्ड को गूगल का जो बॉट है वो देखेगा, फिर वेब क्रॉलर में उसके डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां से पकड़ के लाएगा। तो इसी प्रकार से आता है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। तो आप किसी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं कि आपने जो सर्च किया होगा, जैसे यूट्यूब के ऊपर कुछ जैसे ऐड अगर चलते हैं, जिनके चैनल मोनेटाइज्ड है तो उनके ऊपर ऐड आता है। तो आपने कोई चीज ऐसी देखी होगी या तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने सर्च किया होगा यूट्यूब पे, तभी उस प्रकार की ऐड आपके वीडियो के ऊपर आती है, आप जो वीडियोस देखते हैं उसके ऊपर आती है। तो ये टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग भी डेटा साइंस यूज करता है। इफ यू थॉट सर्च वुड हैव बीन द बिगेस्ट ऑफ ऑल डेटा साइंस एप्लीकेशंस, here it challenges the entire digital marketing spectrum, starting from the display bells on various websites to the digital billboards at airports. Almost all of them are decided by using data science algorithms. तो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर भी ऐड दिखाए जाते हैं। जैसे आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके जो नोट्स है आपको वहां मिलेंगे। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, बहुत सारी नहीं बल्कि कुछ एडवर्टाइजमेंट वहां पे आपको दिखेगी। मैं उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नहीं करता हूं, आपके लिए कम एडवर्टाइजमेंट मैंने रखे हैं, 3-4 जैसे एक पोस्ट के अंदर मिलते होंगे आपको। एक हेडर में रखा है, 2-3 साइड में रखी है, तो ऐसे मैंने कम रखी है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है, आप जो सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऐड आपको दिखती होगी, तो वो एडवर्टाइजमेंट है। तो वो भी इसी प्रकार से काम करता है डेटा के ऊपर से। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ सर्च किया है तो उसका रिकॉर्ड वहां चला जाता है। और जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो एडसेंस, गूगल में एडसेंस होता है, तो एडसेंस ऑटोमेटिकली आपको वो सजेस्ट करता है कि आपने ये सर्च किया था और क्लिक करके आप वहां से खरीद सकते हैं। कोई क्लास का अगर है, कुछ वेदांत वगैरह जैसा आता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पे होती है। इसके बाद है वेबसाइट रिकमेंडेशंस, और ये सारा जो होता है यहाँ पे जैसे लिखा गया है, दिस इज द रीजन व्हाई डिजिटल एड्स हैव बीन एबल टू गेट अ मच हायर CTR। CTR का मतलब होता है कॉल थ्रू रेट। कॉल थ्रू रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप काम कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, आपके वहां जो भी एड वगैरह आता है या जो भी क्लिक आती है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो 100 लोगों में से कितने लोगों ने क्लिक किया वो CTR में काउंट होता है। तो अगर 1% है तो 100 में से 1 ने किया है, 2 है तो 100 में से 2 ने किया है। तो ऐसे CTR वहां पे होता है। आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब में भी CTR होता है। जैसे ये इंप्रेशन गूगल दिखाता है, आपके होम पेज में आया या तो सजेशन में आया, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, या तो फिर आपको नोटिफिकेशन से आया, तो वहां पे आप क्लिक करते हैं तो उसे CTR में काउंट किया जाता है, क्लिक थ्रू रेट। तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, किसी भी वीडियो का, वो होता है CTR। तो आपके CTR के ऊपर से आपको पता चलता है आपको किस लेवल पे काम करना चाहिए, किसके ऊपर काम करना चाहिए। जिसका CTR ज्यादा है उसका मतलब यह है कि उस कंटेंट को, आपके उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं और ज्यादातर लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, तो उसी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो वहां से आपको पता चलता है, एक डिसीजन मिलता है कि आपको कौन सी चीज कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी चीज पे आपको कम फोकस करना चाहिए। तो जिस पे ज्यादा मिलता है उस पे फोकस कर सकते हैं आप। तो ये CTR होता है। तो यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल होता है एनालिटिक्स में। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेबसाइट रिकमेंडेशंस। आप किसी भी वेबसाइट में जाइए तो वहां पे ये मिल जाता है, आरंट वी ऑल यूज द सजेशंस अबाउट सिमिलर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। तो अमेजोन पे आप देखते हैं तो वहां पे आता है रिकमेंडेशन, और उसी के ऊपर क्लिक करके हम दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। दे नॉट ओनली हेल्प अस फाइंड रेलिवेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद देम, बट ऑल्सो एड अ लॉट टू द यूजर एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर से यूजर एक्सपीरियंस भी हमें पता चलता है कि भाई इतने लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, वहां रिव्यूज वगैरह आता है। हालांकि कुछ रिव्यूज खरीदे भी जाते हैं, कुछ रिव्यूज पैसे दे करके पेड रिव्यूज वहां पे डाले जाते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। तो कंपनीज में कुछ लोग होते हैं जिनको हायर किया जाता है, उनका काम ही वही होता है इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना।
तो वो यहाँ पे ऐसा भी काम कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये सारी जो कंपनीज है, सारी जो वेबसाइट्स है, वेबसाइट रिकमेंडेशंस, वो भी एआई डेटा साइंस का यूज करती है। उसके बाद एयरलाइन रूट प्लानिंग। द एयरलाइन इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन टू बियर हैवी लॉसेस except for a few airline service providers. Companies are struggling to maintain their occupancy ratio and operating profits. With high rise in air fuel prices, the need to offer heavy discounts to customers, the situation has got worse. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस में जा रही कंपनियां, तो वो ऐसा कहा जाता है कि एयरलाइंस की कंपनियां सबसे ज्यादा लॉस में जा रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, तो कुछ रिस्क है। तो यहाँ पे कुछ रिस्क इन्होंने डिस्कस किए हैं, कुछ दिए हैं। एक तो है कि एयर फ्यूल प्राइसेस हाइक, तो इसके प्राइस का दाम का बढ़ते रहना, जो भी प्राइस है उसका। और दूसरा यहाँ पे दिया है कि इट वाजंट लॉन्ग बिफोर एयरलाइन कंपनी स्टार्टेड यूजिंग डेटा साइंस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तो डेटा साइंस से उनको कहाँ पे इंप्रूव करना है उसके बारे में पता चलता है। नाउ व्हाइल यूजिंग डेटा साइंस द एयरलाइंस कंपनीज कैन, क्या कर सकती है, यहाँ लिखा है प्रेडिक्ट flight delay, decide which class of airplanes to buy, whether to directly land at the destination or take a halt in between. For example, a flight can have a direct route from New Delhi to New York. Alternatively, it can also choose the halt in any country. तो इसके ऊपर से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से वे में उसको लिया जाए। और प्रेडिक्ट फ्लाइट डिले, फ्लाइट डिले अगर होती है तो वो भी पता चल जाता है डेटा से कि अब यहाँ है, यहाँ है, तो ऐसे टूल से पता चलता है। एंड डिसाइड द क्लास ऑफ एयरप्लेन्स टू बाय, तो कौन सा आपको बाय करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डेटा साइंस से पता चलता है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। तो आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने पहला वीडियो क्लास 10 के लिए डाला है। अब तक के जो वीडियोस थे वो सारे टॉपिक्स कॉमन थे, इसीलिए मैंने क्लास 10 के लिए अलग कुछ नहीं डाला है। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो के बारे में भी आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे वो मेरे लिए फीडबैक है और उस फीडबैक के ऊपर मैं काम करता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विथ डेटा साइंस, और डेटा साइंस में जो प्रॉब्लम स्कोपिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।